Good evening, everyone. I am Kiran Khatri, professor at MBA program of LJU, along with Miss Mansi Gader, first year management student at LJ. LJ has an illustrious alumni base, and alumni are a significant part of the LJ family. As a member of LJ family, it gives me tremendous joy and pride at a moment to begin the event Alumni Mantras, which is online series based on interaction between the students of LJ and the esteemed alumni of LJ MBA. Today we are here to listen and learn from our distinguished alumnus about the success mantras that he has adopted in his life and career. Our guest for today started his career with a restaurant chain in Africa. After a couple of years, he came back to India and started plastic recycling business in 2011. Today, his company, Bharat Plastic Recycling, is successfully working with more than 12 companies and lots of indirect vendors for collection and recycling of plastic waste. The company has a yearly growth rate of more than 50%. It has established itself as a leader in Bhavnagar with a 200-ton monthly capacity. Bharat Plastic has two units, one in Bhavnagar and another in Ahmedabad. So let us welcome the dynamic entrepreneur for today's session, Mr. Sameer Kesaria, the founder of Bharat Plastic Recycling. Welcome, sir. Ms. Thank you, ma'am. Mansi, Ms. Mansi will be asking some questions to Mr. Sameer Kesaria. So over to you, Mansi. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this wonderful introduction, and thank you so much for welcoming us. Firstly, I would like to thank the LG Institute of Management Studies, the faculty, and mostly, ma'am, to you for giving this wonderful opportunity to get interact with a wonderful alumni and so that we can learn from their wonderful journey. So thank you so much. And I would like to once again welcome Mr. Sameer Kesaria, the proprietor and the founder of Bharat Plastic Recycle. So welcome, sir, and thank you so much for giving such a wonderful opportunity to have some conversation and to learn something from you. Thank you, ma'am, for inviting for this beautiful event on Aluminium Talk. I really congrats to all the LJ family members because now LJ is not a college, now it's a university. And it's honor for me also that give you the beautiful lecture about this. Thank you, sir. We always welcome the alumni because we know you have a lot of pearls of wisdom that you can share with our students. So I know lot has changed since you graduated from LJ because at that time we were affiliated to the National University, but now we are our own university. But sir, believe me, uh, lot has changed in the sense that there is a lot of innovation that we are working on, and LJ University is working towards being better and better each day, each passing year. So, for that reason, this event is there, and so we welcome you here. So there are some of the questions which I want to ask to you. Yes, please. So can I? Yes, yes. Yeah, sir. So, sir, my first question for you is how you started this journey regarding this Bharat recycling, plastic recycling? जर्नी का ऐसा है मैडम कि व्हेन आई एम एज अ स्टूडेंट मेरे दिल के अंदर एक था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना है, क्या करना है पता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है। वॉरेन बफेट का एक कोट था कि व्हाइल यू स्लीप इफ यू आर नॉट अर्निंग द मनी देन योर होल लाइफ यू हैव टू अर्न। सो वो एक दिमाग के अंदर था, भाई कुछ करना है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो नाइट में भी अपना प्रोडक्शन चालू रहेगा। When I completed my education in 2009, I went to the Africa. फादर का बिजनेस तो यहाँ पे ट्रेडिंग का था, कोकोनट का हमारा बड़ा बिजनेस है गुजरात भावनगर के अंदर।
तो हम लोग फादर के बिजनेस में नहीं ज्वाइन होना था, तो कज़िन थे अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पे चले गए। एज उसका रेस्टोरेंट था, तो उसकी चेन के साथ में मैं खुद जुड़ गया और मेरा भी रेस्टोरेंट हो गया थे वहाँ पे। लेकिन हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे, एज अ रेस्टोरेंट ऑल्सो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, आटा ला के रोटी बना रहे थे। तो वो एक दिमाग के अंदर वो हो गया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने का है, लेकिन नहीं, 2 साल हो गया, दिमाग के अंदर नहीं बैठ रहा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करना है और अपना वतन बुला रहा है, तो इंडिया वापस आ जाओ। वापस इंडिया आया, थोड़ा प्रॉब्लम्स हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। फिर पता चला, एक कजिन्स के थ्रू पता चला प्लास्टिक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर हम लोगों ने 2011 के अंदर स्टार्ट किया, 2011 एंड के अंदर। एंड आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ मैं ब्रेक इवन पे पहुंच चुका था। एंड अप टू 2015 हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 टन अ मंथ हो गया था। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अभी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो थोड़ा और कुछ अंदर डेवलप करें। तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाने के लिए पूरा प्लांट मशीनरी सब लगा दिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट किए, अंदर गए। और बैग मैन्युफैक्चरिंग, कुरियर बैग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स के लिए ऑर्डर मिल रहे थे, तो वो सब हम लोग उसके अंदर गए। एंड वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। बट आफ्टर सम टाइम वो बराबर नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग फेल हो चुके थे। वहाँ पे भारत प्लास्टिक का जो भी काम था वो थोड़ा सा डाउन हो गया 2016, इन द अर्ली 2016। तो थोड़ा सा फेलियर का वो हुआ, टेंशन आया कि भाई फेल हो चुके हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा इसका। बट ये हमारा यूनिट चल रहे थे, रिसाइकलिंग यूनिट्स हमारा वेल डन, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे हम लोग। तो ऐसा समझा कि भाई चलो ये छोड़ देते हैं। वहाँ पे तुरंत ही हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं फेलियर हो चुका था, अगर मैं उसको पकड़ के बैठ रहा था ना, तो वहाँ पे लॉस ज़्यादा मेकिंग होने वाला था। उसको छोड़ दिया, लॉस को वाइंड अप कर दिया, क्लोज अप कर दिया, और हम लोगों ने नई बिगनिंग स्टार्ट किया। और खुदा ऐसा सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसे सोचते हैं कि खुदा कुछ एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तब हमारे लिए वो दरवाज़ा बंद हुआ और दूसरा रिसाइकलिंग के अंदर ही कुछ अच्छा सा लिखा हुआ था स्कोप। तो 2016 के अंदर हम लोगों ने दूसरा प्लांट लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेटअप ऑलरेडी हो गया था, खाली मशीनरीज को चेंज करने का था। मशीनरीज चेंज करके हम लोगों ने रिसाइकलिंग का कर दिया, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव थी तब तक। तो हम लोगों ने रिसाइकलिंग के अंदर अच्छा खासा काम करना चालू हो गया। और एक हमारे बाजू में पड़ोसी है, फैक्ट्रीज है उसकी, उसके पास से एक अच्छा सा आइडिया मेरे को मिला। तो भाई हम लोग पहले ना रिटेल, उसका फर्नीचर का बिजनेस थे, रिटेल फर्नीचर बेच रहे थे, अभी वो कंपनीज के साथ में काम करना चालू हो गए। वो एक स्ट्राइक हो गया मेरे पास कि भाई चलो अपने को भी एक ऐसा करते हैं ना, रिटेल हम लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जो भी नीचे मटेरियल मिल रहा है वो कर रहे थे, तो एक अच्छा खासा काम करने के लिए जावे। तो कंपनीज के साथ में काम करना पड़ा, वहाँ पे काफ़ी लाइसेंस लेने पड़े, लाइसेंस सब ले लिए। फिर हमारी अपॉर्चुनिटी एकदम से ओपन हो गई। जो हमारा 50 टन अ मंथ था वो हो गया 2017 मिड में हो गया 100 टन्स का। वो हम लोग क्लियर हो गए, 2018 क्लियर किए, पैंडेमिक का ईयर आ गया 2019-20 के बीच में। स्टिल वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, वेरी सस्टेनेबली। और 2021 हम लोगों ने जनवरी में अहमदाबाद में दूसरा हमारी प्लांट चालू किया, और अभी हमारा कैपेसिटी 250 टन्स अ मंथ। इट मीन्स 250,000 किलोग्राम हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं हमारे यूनिट के अंदर। एंड ऑल्सो वी आर गिविंग अ जॉब वर्क टू द वर न्यू, जो अभी नए नए लोग रहते हैं उसके साथ हम लोग जॉब वर्क काम करा रहे हैं, और आउटसोर्सिंग भी करते हैं। और भारत प्लास्टिक अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और 2 या 3 साल का हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। हमारा कैपेसिटी 200 टन से वो 400 टन तक चला जाएगा, अबाउट 1.5 ईयर का। तो ये हमारा फुल जर्नी रहा भारत प्लास्टिक का। Yes, sir, that's a very great journey. And sir, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको कि सर आपको ये प्लास्टिक रिसाइकल करने का एक थॉट क्यों आया? बाकी आप दूसरे वेंचर्स में भी जा सकते थे, लाइक यू कैन डू अदर मैन्युफैक्चरिंग, गुड क्वेश्चन। मेरे कजिन थे ना, जो वो प्लास्टिक के अंदर ही थे, प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पॉलीथीन बैग्स और वो सब। थोड़ा ऐसा लगा कि वो सब लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन लोगों का भी स्क्रैप निकलता ही है, जो भी प्लांट चलाते हैं उन लोग का भी स्क्रैप निकलता है।
और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ऐसा था कि जिसके बहुत लोअर लेवल पे काम कर रहे थे सब लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा, तो वो अंडर लोअर लेवल में काम कर रहे थे वो लोग। कोई हर रोज का मटेरियल लाते थे, हर रोज दाना गिरा रहे और हर रोज काम कर रहे हैं। MBA किया हुआ था, बिजनेस किया हुआ है, ब्लड के अंदर बिजनेस आया हुआ था, कुछ तो करना था। फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ये इजी टू वे है, कोई भी इंडस्ट्री रहेगी, कोई भी इंडस्ट्री रहेगी, अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो, तो उसका स्क्रैप निकलेगा ही। ये बेसिक फंडामेंटल हो गया। तो स्क्रैप निकलेगा, दैट मीन्स कि मेरा काम तो चलने वाला ही है। अभी यहाँ पे मेरा काम बंद नहीं होएगा। आज और आज से 10 साल या 20 साल या 30 साल प्लास्टिक कहीं पे भी बंद नहीं हो रहा है। अगर बंद भी होगा तो मेरा रिसाइकलिंग का काम है। और अभी इंडिया के अंदर ग्रोथ हो रहा है 6.5% ईयर ऑन ईयर प्लास्टिक के अंदर। वो है 63 मिलियन टन इन अ डे प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है गवर्नमेंट को, एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मेरे जैसे काफ़ी लोग जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टू एंटर इनटू द बिजनेस। बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। प्लास्टिक के अंदर इतने सारे ग्रेड है मैडम, उसके अंदर से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रेड्स के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अंदर भी मेरा परसेंटेज बहुत नॉर्मल पे हूँ अभी भी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। गवर्नमेंट थोड़ा सा सब्सिडरीज और वो कुछ बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही बूमिंग मिलने वाला है। और इंडिया अकेला नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। हम लोगों ने कनाडा की कंपनी है ट्रायो साइकिल करके है, उसके साथ हमारा अभी बातचीत चालू है। अगर इंशाल्लाह अगर हो गया तो हम लोग उसके साथ भी मुलाकात करने जाएंगे। उसका प्लांट्स एंड मशीनरीज देखने का है। मैं US जा चुका हूँ उसके लिए, और अभी कनाडा के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये पेंडेमिक का ईयर है ना, तो वो थोड़ा हमको डिस्टर्बेंस कर रहा है। एज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एंटर इनटू द बिजनेस विद द प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। Yes, sir. And sir, my third question to you is, as you said कि आप अफ्रीका जाके आए हो, so sir, you are already in that restaurant chain, right? Yeah. So sir, why you didn't continue that and you switch over to this recycling business? वहाँ पे हम लोग का 3 रेस्टोरेंट थे। सुलूज करके युगांडा के अंदर कंपाला में थे, और वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द कंपाला सिटी। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट चला रहे थे हम लोग, और लोकल फूड सप्लाई कर रहे थे हम लोग। पर मैं आपको बोला, वैसे दिमाग के अंदर ऐसा था मैन्युफैक्चरिंग करने का है। क्या करने का है, दैट डजंट मीन कुछ भी करना है, पर मैन्युफैक्चरिंग करने का है। मैं हर बच्चे को, हर जो भी है मेरे कलीग्स है, स्टूडेंट्स है, वो है वध्यार, आपको अगर लग रहा है मेरे को ये करना है, बिजनेस करने का है, डोंट गो एनीवेयर। आप बिजनेस करो, छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, वो कल बड़ा हो ही जाएगा। अगर आप अपना 100% दोगे तो वो बड़ा होने वाला ही है। मैं बहुत छोटे से काम किया हूँ। मैं अपनी जर्नी तो आपको ये 15, 20 या 25 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन मैं एज ए लेबर भी काम किया हूँ। MBA किया था, लॉट्स ऑफ मनी मैं अफ्रीका में कमा रहा था, और मैं इंडिया में आकर जब मैं सीख रहा था तब मैं एज ए लेबर काम कर रहा था। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मेरे को देखने का था, ग्राउंड मेरे को चेक करने का था, ग्राउंड के अंदर क्या होगा। अपने को ऑफिस में बैठने का है, लेकिन पहले मशीन में क्या होना है, आदमी क्या काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करने का है। तो उसके लिए ग्राउंड में मैंने 6 महीने अहमदाबाद में जॉब किया, बट अच्छा खासा है अभी खाल में। Yes, sir. And so my last second question to you is, as you have mentioned that you have faced a lot of difficulties during this particular industry. So, sir, how you have managed, like as we talk in today's generation, unko patience nahi hai. Like if we talk about our generation only, if something happened or something failure happened, we got depressed very easily. Yeah. So, sir, how you have tackled those problems or those challenges? बहुत डिफिकल्ट है, फेस करना भी डिफिकल्ट रहता है और सस्टेन करना भी डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आपको अगर पॉजिटिवली आप जा रहे हो अंदर, तो आपको करना ही पड़ेगा। बिजनेस के अंदर फेलियर आना ही है, फेलियर आएंगे तो ही कल दूसरा नई मॉर्निंग दिखता है अपने को। तो फेलियर होना ज़रूरी है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि फेलियर होना ज़रूरी है। अगर फेल होंगे ना, तो अपने को पता चलेगा कि सक्सेस क्या है।
और सक्सेस के लिए मेरे को और क्या करना पड़ता है, और मूविंग फास्ट होना चाहिए। अगर आप फेल हो चुके हो, हम लोगों ने 2016 में बहुत बड़ी फेल हुई थी हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट लगाए थे, ये सब किया, और ऑन द स्पॉट 3 महीने के अंदर हम लोग टोटली फेल हो चुके थे, पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा डूब रहा था। बट मूविंग, लॉस बुक करो, ख़त्म कर लो और नई कहानी लिखना चालू कर दो, बट करना ही पड़ेगा। और पॉजिटिवली अगर आप कर रहे हो तो आप सक्सेस होना ही है, 100% आप दो। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वेर एवर यू आर, यू हैव टू गिव योर 100%। अगर आप 100% नहीं दोगे, 99% भी दे रहे हो ना, दैट मीन्स देर इज समथिंग लैक, वो कहीं ना कहीं आपको छूट जाएगा और आपको फेलियर की तरफ खींच लेगा। अगर 100% दे रहे हो तो आपको ऑलरेडी सब जगह से आपको पॉजिटिवली मिलेगी। मेरा एक किस्सा ऐसा था कि हमारा मदर डेयरी से भी काम चल रहा है, अभी IDMC के साथ में काम चल रहा है, विशाखा के साथ काम चल रहा है, काफ़ी नवरंग बड़ी बड़ी कंपनियां है उसके साथ में काम कर रहे हैं, MNC है सब। उसमें एक कंपनी थी जिसके साथ में मेरा काम होने वाला था, टेंडर पास हो गया था, सब सॉर्ट आउट हो गया। कहीं पे भी मेरा एक लाइसेंस के हिसाब से फेलियर हो गया, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। डिस्क्वालीफाइड हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इतना बड़ा मैं इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा हूँ, जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, वो एक साथ में निकल जाएगा तो कर नहीं पाएंगे और क्या करेंगे। दूसरा तो इतना बड़ा सेटअप मिलेगा नहीं तुरंत ही। लेकिन ऊपर वाले की कृपा क्या थी कि वो जो साल था, जो 6 महीने का साल था ना, वो इतना खराब गया सबके लिए कि मेरे को लॉस ही नहीं हुआ। मैं बेसिकली बैठे बैठे पॉजिटिव में आ गया, प्लस में आ गया। तो वो क्या, मेरा 100% मैंने देने का ट्राई किया, अगर नहीं हुआ था मेरे से तो ऊपर वाले की मर्जी वो थी कि भाई ये आपके लिए सही नहीं है समय, ये टाइम आपके लिए बरोबर नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं गया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने आगे बढ़ गए। तो ये बहुत मैंने डिफिकल्टीज बहुत फेस किया। मैं ऐसा सोचूं ना तो लास्ट मंथ वाज द वर्स्ट मंथ इन आवर एंटायर माय 12 years लाइफ, 10 to 12 year लाइफ, लास्ट मंथ ओनली। ये महीना मेरा सबसे बेस्ट हो रहा है। मीन्स वो एक रात चली गई, एक शाम हो गई, खराब हो गई, दूसरी मॉर्निंग को पॉजिटिव के साथ में जाने का है, भाई काम करना है और होएगा ही अच्छा, और होता ही अच्छा ही होता है। तो फेलियर कभी डिप्रेस मत हो, आप 100% पॉजिटिव रहो, कुछ आपके लिए अच्छा लिखा हुआ ही है और अच्छा होने वाला ही है। Yeah, definitely, sir. And sir, last question for today's session. So what advice would you like to give to today's generation or those who want to start business or want to pursue their career in job? As So you what told, advice would you like? पेशेंस रखो, समय आएगा, काम होएगा, और 100% अपना दे दो। अभी के बच्चे में क्या है, पेशेंस तो है ही नहीं, जैसे आपने बोल दिया। और मेरे को फ्रेंड के साथ में ये करने का है, काम करने का है ना, वो नहीं, आपको जो करना है वो आपके ऊपर भरोसा कर लो। मेरे को करने का है, मेरे फ्रेंड करेगा तो मैं करूँगा, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। हम लोग फ्रेंड मिलके काम करना चाहते हैं और ये करेगा, तो अभी एक ना बोल रहा है मैं नहीं करूँगा, तो चार जो रहते हैं वो भी छोड़ देते हैं। वो नहीं, जो आपको करने का है वो आपके दिमाग के अंदर, अकेला करो, छोटा सा करो, कल वो बड़ा होना चालू हो जाएगा। 5 आदमी मिलके काम कर रहे हो, दैट इज गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। टीम वर्क के साथ काम करोगे बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए। फिर बीच में कोई छोड़ेगा तो सब 4 लोग भी निकल जाते हैं, भैया हमको नहीं करने का है, तो वो क्या, अपना टाइम जाएगा, अपना काफ़ी कुछ चली जाती है, फिर वो फ्यूचर अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिप्रेशन में आ गए। नहीं, वो करना है पॉजिटिवली, जो भी करना है खुद के दम पर करना है। Yes, sir. Thank you so much, sir, for answering the queries. And I'm extremely grateful to you and as well as ma'am for giving such a wonderful opportunity for today. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much, madam. Sir, I want to thank you on behalf of the entire LJ family for giving us your valuable and precious time and spending few minutes with us. But then in your few minutes, we have learned a lot. The most important thing that I really appreciate that you having a focused approach, that very few graduates or MBA graduates, we see that in them that they have the focused approach. Like you said, you wanted to go for manufacturing.
So that I really, I think that has helped you throughout your career, having a focused approach. 100%. Then how you, even though you were part of the unorganized sector, but how you used your knowledge to your advantage in being in the unorganized sector. So everybody can use their knowledge if they are part of the organized sector, if they are in a corporate. But then using your knowledge for your advantage in a sector which is not so organized is one thing which I really respect about how you approached your career. Then like you gave a lot of advice, but really what stuck with me is like giving your 100% to your work. So no matter where you are, whether you are in a job or you are in a business, you should always give your 100%. And how you turned the failure into opportunity. So like you mentioned, in 2016 you were facing a lot of problems. So a lot of entrepreneurs would give up like the business if they are facing challenges, but then you thought of a different idea and how you actually turned that entire thing into your own advantage. So that is something which I think all the students should learn and understand. And the last but not the least, how to maintain a positive outlook. So that really I admired about you, sir, that last month you were facing a lot of difficulties, still you managed to have a positive outlook, which is required in today's generation, not just in today's generation, but the 100%. times that we are going through. Everyone Requires a very positive, futuristic outlook, forgetting about what has happened, what is gone, and just look forward at the future and be positive about it. So thank you, sir. Those were some valuable pearls of wisdom that we have gathered from you. And please do visit us at LJ, and a lot of compliments and regards from all of us at LJ. Thank you, sir, for your time. Thank you. Thank so you. much, sir. Thank you everyone for watching. That is all from our side.